Hello everyone, welcome to my channel CS Ab Initio. This video is on Basics of Indian Contracts Act. It is topic 2 of your legal aptitude paper. So let's start. So first see the takeaways from this video. What you will learn after watching this video. We will understand what contract is under Indian Contracts Act 1872. What is an agreement? What is a promise? And what is an obligation? So promise and obligation are the terms used interchangeably, but that has a different meaning under Indian Contracts Act. And similarly, the contract and agreement are used interchangeably, but both have a different meaning and different enforceability under this act. We'll understand agreement and contract and what is the difference between agreement and contract. When an agreement can become a contract, what are the factors which are necessary for an agreement to be called as a contract. And then the most important part of this video is what are the essential element of valid contract. What factors needs to be present in order to say that a particular paper is a valid contract legally enforceable under Indian Contracts Act. We'll also see some of the related case laws in reference to the topics above. So Indian Contract Act. It was passed in 1872. It is one of the oldest legislation of our country. But it is one of the major law which is governing the business transactions in our country, and it's also one of the major act of mercantile law. Now we'll first start with contract. So subsection H of section 2 of Indian Contracts Act has a very simple definition of contract. It says agreement enforceable by law is contract. As simple as that. So in order to understand a particular thing as a contract, we must first understand what agreement is and what legal enforceability is. So first, that there should be an agreement, and this agreement must be enforceable by law. Then only it becomes a contract, a legally binding contract. Now we'll see what agreement is. So agreement's definition is in section 2 subsection E of Contracts Act. It says every promises and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement, right? So for an agreement there should be a promise by one person and acceptance of that promise by another person, and another person should have also promised something in return. Therefore, these promises forms part of the consideration of each other and then comes into an existence an agreement. For example, A promised B to supply 100 kgs of tomatoes. B in return agreed to pay 500 for 100 kgs of tomatoes. So A promised to supply tomatoes, B promised to pay 500 rupees. So these are the two set of promises which are forming the part of consideration for each other, and therefore there comes into an existence an agreement. So let's get into more detail. Agreement comes into an existence when one party makes a proposal or offer to another party and another party signifies his assent thereto. Right? So an agreement comes into an existence when one person has given a proposal or offer to other person and other person has signifies his assent thereto. मतलब जो दूसरा पर्सन है उसने अपनी असेंट दी है उस प्रपोजल के लिए, बेसिकली उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी है उस प्रपोजल के लिए. देयरफॉर अग्रीमेंट तब एग्जिस्ट करेगा जब एक ऑफर होगा और उसी ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा. अगर उस ऑफर के अगेंस्ट कुछ जो सेकंड पर्सन है उसने कुछ दूसरा ऑफर दिया, देन दिस इज एन काउंटर ऑफर, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. जो ऑफर दिया गया है एज इट इज उसको अगर एक्सेप्ट किया है देन ओनली देयर इज एन अग्रीमेंट. सो एन अग्रीमेंट इज अ सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. अग्रीमेंट इज ऑल्सो एन ऑफर एंड एक्सेप्ट. अब इसी अग्रीमेंट को अगर हम लीगली एनफोर्सेबल बनाते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. सो लीगली एनफोर्सेबल करने के लिए अग्रीमेंट के साथ साथ लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए. देयरफॉर एन अग्रीमेंट मस्ट बी कपल विद एन ऑब्लिगेशन टू मेक इट एनफोर्सेबल. दो पर्सन का अग्री करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर्सन को दूसरे की तरफ एन ऑब्लिगेशन फील होना चाहिए. देयर शुड बी अ लीगल ऑब्लिगेशन
देन ओनली अ थिंग कैन बी लीगली एनफोर्सेबल। अब हम देखते हैं ऑब्लिगेशन क्या है। ऑब्लिगेशन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज referred to as a legal duty to do a particular thing or abstain from doing a particular thing. So students generally abstain from doing से confuse हो जाते हैं। abstain from doing का thing होता है किसी चीज़ को promise करना कि वो हम नहीं करेंगे। So let's get an example of an obligation जिसमें legal duty to do भी है and abstain from doing भी है। Suppose a person has agreed to purchase a land for rupees 10 lakh. So A is a seller of land and B is a buyer of land. A is agreeing to sell a land for rupees 10 lakh. B is agreeing to give 10 lakh rupees as a consideration for the land. So both are promising a land and money to each other and therefore there is an agreement. अब वो अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल तब होगा जब दोनों पार्टी के बीच में लीगल ड्यूटी होगी। सो वन पार्टी हैज़ अ लीगल ड्यूटी टू गिव अ लैंड, अनदर पार्टी हैज़ अ लीगल ड्यूटी टू गिव 10 लाख रुपीज। सो देयर इज एन अग्रीमेंट। अब हम देखते हैं एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का क्या एग्जाम्पल है। सपोज बी ने ए को 1 लाख रुपीज दिया और बोला आई परचेज दिस लैंड आफ्टर 3 months and asked A to not to sell land for 3 months in return of rupees 1 lakh. So now A के पास क्या लीगल ड्यूटी है? उसकी ये लीगल ड्यूटी है कि उसे वो लैंड 3 महीने तक नहीं बेचनी है। सो दिस इज एन अग्रीमेंट वेयर A is abstained from selling a land. ठीक है, तो कोई भी प्रॉमिस, कुछ करने का प्रॉमिस और कुछ ना करने का प्रॉमिस, दोनों ही लीगल प्रॉमिस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एंड दोनों ही लीगल ऑब्लिगेशन बन सकते हैं। द टर्म प्रॉमिस इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। इट सेज व्हेन अ पर्सन टू whom a proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and when proposal is accepted it becomes a promise. ठीक है, तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई प्रपोजल देता है और दूसरा पर्सन प्रॉमिस करता है कि हाँ उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है और वो उसे पूरा करेगा, देन इट इज कॉल्ड अ प्रॉमिस। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड ऑब्लिगेशन। प्रॉमिस कैन बी अ नॉर्मल सोशल प्रॉमिस और अ प्रॉमिस विच क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, बट ऑब्लिगेशन हमेशा ही लीगल होगा। ठीक है, लीगली एनफोर्सेबल होगा। So promise can be general. A social promise, one A can promise B to have a dinner together. A can promise B to go to a market together. So these are the general promises. But when consideration is involved, it becomes a legal obligation. Now we'll see what are the basic constituents of agreement. As we have seen, an agreement comes into an existence with a proposal or offer and acceptance of that offer. So agreement has two basic ingredients: plurality of parties and consensus ad idem. Consensus ad idem is a basic thing for agreement to come into an existence. Plurality of parties का मतलब हुआ there should be at least 2 person to enter into an agreement, and second there should be a consensus ad idem जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। कंसेंसस एड आइडम का लिटरल मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, बट इट कैन ऑल्सो बी डिनोटेड एज म्यूचुअल कंसेंट, राइट। तो अगर दो पार्टी के बीच में म्यूचुअल कंसेंट है देन वी कैन से दैट देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द टू। सो बोथ पार्टीज टू एन अग्रीमेंट मस्ट अग्री टू द सेम सब्जेक्ट मैटर एट द सेम टाइम एंड इन अ सेम सेंस। ठीक है, दोनों जिस चीज के लिए अग्रीमेंट कर रहे हैं वो सेंस सेम होना चाहिए। सपोज ए इज प्रॉमिसिंग बी दैट आई विल सप्लाई 100 kgs ऑफ टोमेटो and B is agreeing to that. There is a confusion between A and B. A ने ये agree किया है to supply tomatoes, but it can be after 2 days, and B may have agreed that he will supply him tomato immediately, right? So दोनों के बीच में consensus नहीं है. That is not a meeting of minds. There is a difference of understanding of both the parties. So there is no agreement here. So consensus ad idem is one of the major ingredient for an agreement to come into an existence. So as we have already seen, वही agreement contracts होते हैं जो legally enforceable होते हैं, but apparently agreement और contract में कोई difference नहीं दिखता है. तो we'll understand the difference between agreement and contract in terms of some examples. दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स नहीं है अगर किसी एग्रीमेंट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते. पहली चीज, idea of bargain is absent. There is no business between both the persons. There is no intention to bargain.
ठीक है, और देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, दो लोगों ने एक दूसरे से कुछ अग्रीमेंट किया बट उनके बीच में कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है, और दोनों के बीच में बार्गेनिंग इंटेंशन एब्सेंट है, तो उस केस में अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। इन दोनों चीज़ के हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है जो अग्रीमेंट सोशल मैटर्स के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी को प्रॉमिस किया कि वो उसके साथ मूवी देखने जाएगा या उसके साथ वॉक करने जाएगा, तो उन दोनों के बीच में कोई लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर एक ने वो अग्रीमेंट पूरा नहीं किया तो दूसरा उस पर केस नहीं कर सकता है कि ये मेरे साथ मूवी देखने नहीं गया। देयरफॉर दीज आर द सोशल अग्रीमेंट, सोशल मैटर्स। ठीक है, इस पे कोई बार्गेनिंग भी नहीं है, देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व and there is no intention to create a legal obligation. Suppose A has promised B to take B on dinner and B has promised to pay for dinner, right? तो इस केस में दोनों लोगों ने आपस में प्रॉमिस भी किया है, दोनों प्रोमिसेस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन भी है, बट फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है। बार्गेन तो है बट कोई इंटेंशन नहीं है। अगर ए बी को डिनर के लिए नहीं ले गया तो बी ए पे केस नहीं करेगा, और बी ने डिनर के लिए पैसे नहीं दिए तो ए भी बी पे केस नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज अ सोशल मैटर। नाउ दिस अ वेरी फेमस केस स्टडी, बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर। इस केस स्टडी में ये हेल्प किया गया था कि कोई भी तरह का डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो इसमें क्या हुआ था, द हस्बैंड वॉज वर्किंग इन सिलोन and he agreed in writing to pay housekeeping allowance to his wife living in England, that is somewhere else। तो दोनों के बीच में एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट हुआ था कि हस्बैंड वाइफ को हाउसकीपिंग अलाउंस देगा क्योंकि वो अलग रह रही है। बट लेटर ऑन व्हेन वाइफ फाउंड दैट हस्बैंड इज अनफेथफुल एंड शी फाइल्ड फॉर अ डिवोर्स, बट लेटर ऑन ही स्टॉप द अलाउंस। अब इसमें केस कर दिया वाइफ ने कि जो अलाउंस उसको दे रहा था हस्बैंड वो अभी भी देते रहना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। बट द कोर्ट हेल्ड देयर इज नो लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इनिशियली जब ये अरेंजमेंट हुआ था तो ये एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट था। उस समय देर वॉज नो लीगल इंटेंशन बिटवीन बोथ द पार्टीज। देयरफॉर इन दिस केस हस्बैंड वॉज हेल्ड राइट, ही वॉज एंटाइटल्ड नॉट टू गिव हाउसिंग अलाउंस टू वाइफ। तो अभी हमने देखे कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं। उस केस में प्रोमिसेस भी है, कंसिडरेशन भी है, राइटिंग में भी है, बट स्टिल दे कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। सो नाउ वील सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एन अग्रीमेंट मस्ट बी एन इनफॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज। ठीक है, तो अगर कोई अग्रीमेंट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक वो फॉर्मल अरेंजमेंट ना हो। अगर दो लोगों के बीच में कोई इनफॉर्मल अरेंजमेंट हुआ है, कोई डोमेस्टिक अरेंजमेंट हुआ है जिसमें कोई लीगल इंटेंशन नहीं है, तो वो सिर्फ अग्रीमेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। देयरफॉर एन अग्रीमेंट इज बेसिकली एन इनफॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। अ कॉन्ट्रैक्ट in contrast is a formal arrangement between two or more parties and it is enforceable by law। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। Agreement is not enforceable by law, contract is enforceable by law, agreement is informal arrangement, contract is formal arrangement. Another difference is the agreement that lacks any elements of contract has no legal effect। तो agreement जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, जो अभी हम आगे देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर्स, तो वो उनमें से अगर कोई भी इंग्रेडिएंट एब्सेंट है देन इट इज़ एन अग्रीमेंट एंड नॉट द कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर वो इंग्रेडिएंट्स एब्सेंट है तो वैसे भी वो अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो अग्रीमेंट हैज़ नो लीगल इफेक्ट while contract has a legal effect, it is legally binding and अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल किया है किसी ने तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस इज अग्रीमेंट के केस में कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट के केस में कंसिडरेशन इज मैंडेटरी। अगर कंसिडरेशन नहीं है देन इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। दीज आर द थ्री बेसिक डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई डॉक्यूमेंट अग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज बोथ थिंग्स कैन नॉट बी इन राइटिंग। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो राइटिंग में ही होगा। देर आर मेनी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो जो हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में।
और अगर कोई चीज़ रिटन में है तो ज़रूरी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। जैसे हमने देखा अभी हस्बैंड एंड वाइफ का केस बॉल्फर एंड बॉल्फर में, उसमें हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में राइटिंग में अग्रीमेंट था, बट स्टिल इट इज़ नॉट लीगली एनफोर्सेबल बिकॉज लीगल इंटेंशन एब्सेंट था। एंड बोथ केस में अग्रीमेंट में एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट में देयर शुड बी अ म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, कंसेंसस ad idem is necessary in both agreement as well as contract. Now we'll come to essential elements of valid contract. कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाएगा? जब उसके सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफाइड है वो फुलफिल करता है, राइट? सो लेट्स सी सेक्शन 10 क्या है। सेक्शन 10 ये बोलता है कि ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, parties must be competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared void, right? तो पहले तो हम समझते हैं सेक्शन 10 को। ये बोलता है वो सारे अग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे जब उन दोनों के बीच में, जिनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है, उन पार्टीज का फ्री कंसेंट है, उनका कंसेंट इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई हैं वो दोनों कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब उनके अंदर कोई माइनर नहीं है, कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन नहीं है, दोनों की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। थर्ड, देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन, जिस चीज के लिए भी अग्रीमेंट हुआ है कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन होना ही नेसेसरी नहीं है, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब जो कंसिडरेशन में हम वो चीज़ नहीं दे सकते हैं जो इलीगल हो, ठीक है? सपोज अ लॉटरी टिकट्स आर इलीगल इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, सो लॉटरी टिकट्स को हम एज अ कंसिडरेशन नहीं यूज़ कर सकते, इट इज़ नॉट अ लीगल कंसिडरेशन। सिमिलरली लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कि मैं 10 लाख रुपए के बदले में किसी का मर्डर कर दूंगा। एंड लास्ट पॉइंट इज it should not be declared void under Indian Contracts Act. So Indian Contracts Act में आगे कुछ sections हैं जहाँ पे कुछ contracts को void कहा गया है। So अगर वो contracts exist कर रहा है then also it is not a valid contract. Let's see these essential elements of contracts one by one. सबसे पहला हमने देखा there should be an offer and acceptance. Agreement तभी exist करेगा जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होगा और दोनों के बीच में सेम चीज़ के लिए सेम टाइम पे सेम सेंस में ही कंसेंसस होना चाहिए। देयर शुड बी अ म्यूचुअल कंसेंट, मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन टू पर्सन, ठीक है? अगर डिफरेंस है देन देयर इज नो कंसेंसस एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. Second essential element is there should be an intention to create a legal relationships, right? Or there should be an intention to have a legal consequences. दो लोग कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में तभी एंटर करेंगे जब उन दोनों के बीच में लीगल रिलेशन होगा। दो लोगों ने एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस किया, अग्री किया, बट वो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो दोनों की ये इंटेंशन है कि अगर दोनों में से कोई एक भी वो नहीं करेगा तो दूसरा उसके अगेंस्ट केस कर सकता है, और दोनों को ही ये पता है कि अगर वो अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करेंगे तो उसके कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो सेकेंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट इज टू हैव अ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और लीगल इंटेंशन. थर्ड एसेंशियल एलिमेंट इज लॉफुल कंसिडरेशन. कंसिडरेशन जो एक पार्टीज ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, अग्री किया है, वो लॉफुल होना चाहिए. illegal consideration is not acceptable in contract. Fourth important factor is parties to the contract should be legally capable of contract. Contracts Act में कुछ पार्टी स्पेसिफाई की गई हैं जो लीगली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती हैं. मोस्ट कॉमन फैक्ट एग्जाम्पल इज माइनर्स. सपोज अ पर्सन बिलो द एज ऑफ माइनर is not a legal person who can enter into an contract. उसके बिहाफ पे उसका गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, राइट? तो parties to the contract should be legally capable of contracting. Next is there should be a genuine consent between the parties. So consent in any circumstances should not be influenced by other factors. बाद में अगर कोई ये क्लेम करता है कि जो उसकी कंसेंट थी वो इस फैक्टर से इन्फ्लुएंस की गई थी, देयर शुड बी एन अनड्यू इन्फ्लुएंस, या किसी ने गन की नोक में रख के बोला कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो, सो देयरफॉर इन दिस केस देयर इज नो जेन्युइन कंसेंट, दैट इज एन इन्फ्लुएंस्ड कंसेंट. तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा.
अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने का वो लीगल होना चाहिए. इलीगल ऑब्जेक्टिव ऑफ अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. If objective to enter into an agreement is to murder someone, then it is not a legal agreement and therefore it is not a contract. Most important factor of contract that is it should be capable of performing. कोई ऐसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो कभी परफॉर्म ही नहीं की जा सकती है. सपोज A has promised B to live for the period of 500 years. So it is not a thing which can be performed. It is not possible for A to physically perform that contract. Therefore, it is not a contract. And last important ingredient of a contract is it should not be declared void. As we have already studied, कुछ ऐसे contracts हैं जिनको void declare किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में. अगर उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है कोई अग्रीमेंट तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. सो इन ऑर्डर टू हैव अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट देयर शुड बी एन अग्रीमेंट. उस अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज का कंसेंट जेन्युइन होना चाहिए. दोनों पार्टीज एक दूसरे को लॉफुल कंसिडरेशन देने के लिए प्रॉमिस करेंगी. ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल. It should be between competent parties, those who are competent of entering into a contract, and it should not have been declared void. So this was all about valid contract under Indian Contracts Act. So to have a better understanding of Indian Contracts Act and other topics of legal aptitude, stay tuned to my channel. Thank you so much.